اچھا آپ سمجھ رہے ہوں کہ میں ایکٹنگ کرتا ہوں، مجھے جینوئنلی کوئی غصہ نہیں آتا، اور میں اس کے اوپر اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کر دیا ہے الحمدللہ کہ مجھے واقعی کوئی غصہ نہیں آتا، ایک رتی برابر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کر دیا الحمدللہ، مجھے غصہ نہیں آتا، رتی برابر بھی غصہ نہیں آتا۔ قسمیں کھانا، جھوٹی قسم والے جھوٹے ہوتے ہیں۔ آپ کو دکھاتے ہیں کتنا ہی جھوٹا آدمی ہے، خدا پر جھوٹ باندھ رہا ہے قسمیں کھا کے۔ اچھا آپ سمجھ رہے ہوں کہ میں ایکٹنگ کرتا ہوں، مجھے جینوئنلی کوئی غصہ نہیں آتا، اور میں اس کے اوپر اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کر دیا ہے الحمدللہ کہ مجھے واقعی کوئی غصہ نہیں آتا، ایک رتی برابر نہیں آتا۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ میری طبیعت بالکل ڈیفرنٹ ہے، مجھے کوئی بندہ چھیڑتا ہے نا میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ ہم منگولوں کی اولاد ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تو اڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے، جتنے اولیاء اللہ نے۔ میری طبیعت ڈیفرنٹ ہے، جو مجھے چھیڑتا ہے مجھ سے چھوڑتا نہیں ہوں۔ ہم منگول ہیں، ان کو پتہ نہیں منگولوں نے کیا کیا۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایسا کر دیا کہ مجھے غصہ نہیں آتا، اور آگے کہتا ہے کہ میں خوش ہوتا ہوں کہ میری جو ہے نا وہ تبلیغ ٹارگٹ پہ صحیح پہنچی ہے، مجھے رتی برابر غصہ نہیں آتا۔ اور اب کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ کی تخلیق میں فالٹ آ گیا۔ پہلے کہہ رہے کہ مجھے اللہ نے ایسا کر دیا ہے، اب اتنی جلدی کیا فرق پڑ گیا کہ اللہ نے تمہیں ایسا کر دیا کہ جو تمہیں چھیڑتا ہے تم اس کو چھوڑتے نہیں ہو۔ کتنا جھوٹا مکار آدمی ہے، خدا پر جھوٹ باندھ رہا ہے، کتنا کمینہ آدمی ہے، اور کس پر فخر کر رہا ہے؟ منگولوں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ 4 باتیں جو ہے جاہلیت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ایک یہ کہ اپنے جاہلی نسب پر فخر کرنا، اور آپ علیہ السلام نے واضح طور پر منع کیا ہے کہ آپ نے جاہلی نسب پر فخر نہیں کرنا، وہ تو جہنم جا کے پہنچے۔ تو یہ جہلمی اپنے جہنمی منگولوں پر فخر کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کر رہا ہے، سامنے کتابیں رکھ کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ایک طرح سے آپ علیہ السلام کی تعلیم کو پس پس ڈال رہا ہے، اور آگے خدا پر قسم اٹھا کے اور کس طرح جھوٹ باندھتا ہے، یہ بھی آپ ذرا دیکھ لیں۔ بعض کا کو سخت لفظ ہے، لیکن الحمدللہ کوئی غیر اخلاقی لفظ، کوئی گناہ کے زمرے میں آنے والا لفظ میں قطعاً استعمال نہیں کرتا، اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ کوئی غیر اخلاقی لفظ، گناہ کے زمرے میں آنے والا لفظ میں قطعاً استعمال نہیں کرتا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ اب ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ امام قدوری کوئی کتے کا بچہ کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، جو خدا پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ یہ ذرا دیکھ لیں۔ قطوری شریف، پنجابی میں کہنا قطوری شریف، یہ قطوری بات کہ یہ قطورا جو یہ لفظ بولا ہے، یعنی کتے کے بچے کے لیے نا پنجابی میں بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کوئی پوچھ رہے قطوری کا مطلب کیا ہے، یا قطورا کسے کہتے ہیں؟ قطوری شریف، پنجابی میں کہنا قطوری شریف، یہ قطوری بات کہ یہ قطورا جو یہ لفظ بولا ہے، یعنی کتے کے بچے کے لیے نا پنجابی میں بولا جاتا ہے۔ قطوری، تو امام قدوری کو میں قطوری کہتا ہوں، یعنی کتے کا بچہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ غیر اخلاقی لفظ نہیں ہے، یہ گناہ کے زمرے میں آنے والا لفظ نہیں ہے کہ ایک امام کو آپ کتے کا بچہ کہیں، یعنی آپ کے نزدیک یہ غیر اخلاقی لفظ نہیں ہے اور گناہ کے زمرے میں آنے والا لفظ نہیں ہے، تو آپ کو ہم سر عام کہیں گے کتے کا بچہ۔ تو آئندہ دوستو آپ نے کمنٹس میں لکھنا ہے کہ کتے کا بچہ مرزا جہلمی، اور آپ نے اس کے چیلوں سے اور اس کے چھوکروں سے پوچھنا ہے کہ کتے کا بچہ کہنا غیر اخلاقی لفظ نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ گناہ کے زمرے میں آنے والا لفظ ہوتا ہے، اس لیے بھونکتا ہے اور یہ کتے کا بچہ ہے۔ اور آگے بھونکنے پر بھی آپ کو بتاتا ہوں، یہ ذرا آپ دیکھ لیں کہ میری طبیعت میں اتنی سختی ہونے کے باوجود حق کے معاملے میں یہ نبیوں والی جو اخلاق نبوت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ حصہ مجھے دیا ہے کہ میں اپنے مخالفین سے کبھی بھی بدلہ لینے کی بات نہیں کرتا، کہ میں اپنے مخالفین سے کبھی بھی بدلہ لینے کی بات نہیں کرتا۔ اخلاق نبوت سے مجھے حصہ ملا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یا نبیوں کے یہ اخلاق تھے کہ آپ کسی امام کے بارے میں کہہ کہ وہ بھونک کے گیا تھا، نبیوں پر جھوٹ باندھ رہا ہے، یہ ذرا اس کا اخلاق چیک کر لیں۔ ایک ایمنی جی پڑیا ہے امام حنیفہ نے لکھی کتاب الفقہ الاکبر، جس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کے ماں باپ کفر کی حالت میں مرے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہاں، ملا علی قاری نے باقاعدہ دفاع کی ہے کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا تھا۔ اتنی سی پڑیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے والدین جو وہ کفر پر مرے ہیں، بھونک کے گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنا بڑا کمینہ آدمی ہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بہت بڑا کمینہ آدمی ہے۔ اس نے ویڈیو بنائی تھی کہ الفقہ الاکبر امام ابو حنیفہ کی کتاب ہی نہیں ہے۔ الفقہ الاکبر کتاب سے جو حنفیوں کے نزدیک
बुनियादी किताब है, बड़ी छोटी सी किताब है अकायद के ऊपर, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ वो मंसूब करते हैं, ज़ाहिर है वो उसको मानते हैं किताब के उनकी है। हमारे नज़दीक तो वो किताब इमाम हनीफा की वफ़ात के तकरीबन 250 साल बाद लिखी गई है, उसकी सनद कोई नहीं है। अब यहाँ ये कह रहा है कि उनकी तरफ मंसूब है लेकिन ये उनकी किताब नहीं है। हम कहते हैं उनकी किताब है लेकिन ये अल्फाज इस किताब में है ही नहीं है। जो हमारे पास किताब मौजूद है उसमें ये नहीं है। कुछ पुराने छापे थे जिसमें ये डाला गया था, फिर उलमा ने उसकी तरफ तवज्जो दिलाई तो उसको फिर कहा कि ये वो छापे हैं जो गैर मोतबर हैं। जो मोतबर छापे हैं जो आज हमारे पास किताबें उसमें ऐसे लफ्ज़ ही नहीं है। तो हमारे यहाँ नज़दीक भी क्या है, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन जो है वो हालत फ़तरत में अल्लाह को प्यारे हुए, कुफ्र की हालत में नहीं, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भी, और मिर्ज़ा के नज़दीक भी वो किताब जो गैर मोतबर है। हमारे यहाँ मोतबर इस हिसाब से है कि हमारे पास जो फ़िक़्ह अकबर है उसमें ऐसी बात है ही नहीं। लेकिन कितना कमीना आदमी है, ख़ुद मानता है कि उनकी तरफ किताब मंसूब है लेकिन ठीक नहीं है, उसके बावजूद किस तरह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भौंक रहा है। अब आप कहेंगे कि क्योंकि भौंक रहा है, इसके नज़दीक इस तरह के अल्फाज जो है वो गैर मुनासिब होते नहीं हैं, न बदअखलाक़ी में शामिल होते हैं, न गुनाह के ज़ुमरे में शामिल होते हैं। तो मिर्ज़ा जरमी बताओ इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, उनकी अपनी किताब है ना नसाई शरीफ, तो उसमें बाप बांधा है इमाम नसाई ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदा मोहतरमा के बारे में कि वो मुशरिका हैं नऊज़ बिल्लाह, और उन्होंने एक ही हदीस लाए, और जिसको मिर्ज़ा मानता है कि जब इमाम बाप बांधे तो बाप बांधना उसका अकीदा होता है। ये ज़रा देख लें। इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह जो अहले सुन्नत के बड़े इमाम हैं और कुतुब सित्ता में उनकी किताब है सुनन नसाई अल मुतवफ़ा 303 हिजरी, उन्होंने ये जो मुस्लिम शरीफ की 2257 नंबर हदीस थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र पर गए थे, ये हदीस सुनन नसाई में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2035 आती है। तो इमाम नसाई ने इस पर बाप बांधा है मुशरिक की कब्र पर जाने का जवाज। तो इसका मतलब है कि इमाम नसाई रहमहुल्लाह का भी यही अकीदा था, क्योंकि बाप की हेडिंग इमाम का अकीदा होता है। तो अब मिर्ज़ा मान गया कि इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने अपना अकीदा ज़ाहिर किया कि आप अलैहिस्सलाम की वालिदा जो है वो मुसलमान नहीं थी, हालत फ़तरत में नहीं फ़ौत हुई थी, हालत शिरक में, हालत कुफ्र में फ़ौत हुई। तो बोले अब बके। अब एक तरफ कहता है मेरे ईमान का तकाज़ा है, अगर मैं नहीं मानता तो मैं मतलब ईमान से निकल जाऊंगा। ये ज़रा इसकी भड़कें भी सुने। मेरे ईमान का तकाजा कि मैं हुजूर के माँ बाप का दिफा करूंगा, उसके मुकाबले पे जो भी खड़ा होगा उन्हें लम्बा पाऊंगा। मैं अपना ईमान बचा रहा हूँ, मुझे तो उसकी बुजुर्गी नजर ही नहीं आ रही, मैं तो अंधा हो गया ना। जब मेरे नबी के माँ बाप को कोई काफिर कह रहा है तो मैं तो अंधा हो गया। मैं तो अंधा हो गया। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन को जो काफिर कह रहा है तो मैं उसकी तो बुजुर्गी फारिग हो गई। तो इमाम नसाई की बुजुर्गी फारिग हुई कि नहीं हुई? इमाम इब्न माजा ने भी बांधा है तो उनकी भी बुजुर्गी फारिग हुई कि नहीं हुई? कमीना आदमी उनके बारे में बात नहीं करेगा क्योंकि उसको बुग़्ज़ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से। और अहले हदीस का भी नज़रिया यही है, जिनको कहता है मेरे जो है वो बाबे हैं, हाफ़िज़ ज़ुबैर ज़ई मेरे बाबे हैं, उनका नज़रिया भी यही है अहले हदीस का। और अरब के उलमा उनका भी नज़रिया यही है, और इसका जो बाबा है अलबानी उसका भी नज़रिया यही है। वो कहता है जो कहे कि नबी अलैहिस्सलाम के वालिदैन हालत फ़तरत में फ़ौत हुए हैं, हालत कुफ्र में फ़ौत नहीं हुए, वो ख़ुद काफिर है। तो अलबानी के फतवे के लिहाज से मिर्ज़ा जरमी ख़ुद काफिर है क्योंकि ये उनको अपना बाबा मानता है, इमाम मानता है। तो अलबानी ने फतवा दिया है इस पर कि ये काफिर है। तो ऐसे काफिरों से बचें। और किस तरह की बज़बानी कर रहा है, अपने आप को काफिर और अपने आप को मुनाफिक बना रहा है। एक और मिसाल देख लें इसकी। कभी काफिर किसी को कहा हो, मुनाफिक कहा हो, मुनाफिक कहा हो, जहन्नमी कहा हो, हमेशा इल्मी इख्तिलाफ की अल्लाह के फजल से। पहला तो हमने झूठ पकड़ा है जो तुमने 12 किताबें दिखाई थी, बेईमान आदमी। अब वो जो एक चूहा इन्होंने छोड़ा है जो 12 किताबें दिखा रहा है, जो मुनाफिक किस्म का एक मुनाफिकाना अप्रोच रखने वाला जो मौलाना, मैं उसको मुफ्ती भी नहीं कहता, मौलवी एक छोड़ा उन्होंने चुगड़ा। पहले क्या कह रहा था कि मैंने किसी को काफिर नहीं कहा, मैंने किसी को मुनाफिक नहीं कहा। वीडियोज़ तो नहीं छुपती ना, आपका जो यूट्यूब हाफिज़हुल्लाह है वो तो आपको आईना दिखाता है कि कमीने आदमी, झूठे आदमी, किस तरह तुम उलमा कराम को मुनाफिक कहते हो, काफिर कहते हो, बदज़बानी करते हो। मुफ्ती राशिद साहब ने इसको दिया था जवाब। इसने पहले ये कहा कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला के मुताल्लिक़ जो ये वाक़या है कि आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के ज़हर पी लिया, कहते किताब ही दिखाओ ना, किस किताब में लिखा हुआ है, हमें बस ये बताओ किस किताब में लिखा हुआ है। जब इसका ये दावा आया, मुफ्ती राशिद साहब ने 12 किताबें दिखाई।
मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, फ़ज़ाइल सहाबा, मुस्नद अबू याला और दीगर किताबों से दिखाया कि भाई ये वाक़या मौजूद है। अब क्या कह रहा है कि किताबें तो हैं लेकिन ये मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ़ करार दिया है। तो वो कहते हैं हज़रत खालिद बिन वलीद ने कैसे जहर पी लिया। अब इसका जवाब तो ये होना चाहिए था कि भाई हज़रत खालिद बिन वलीद का जो हवाला मांगा है वो किस किताब में लिखा हुआ है। उसकी बजाय उन्होंने कंपैरिजन शुरू कर दिया कि जी अगर ये हो सकता है तो वो क्यों नहीं हो सकता, तो वो हो सकता है तो वो क्यों नहीं हो सकता। लेकिन ये जहर वाला तो कहीं पे भी नहीं मिलता कि आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के जहर खा लेना। ये हवाला देना भाई हमने तो ये कहा ही नहीं है। हमने पहली चीज उस सिस्टर ने ये आपसे पूछी थी कि लिखा कहाँ हुआ है, वो तो आपने बताया नहीं है। अली भाई, खालिद इब्ने वलीद के जहर पीने वाला वाकया के बारे में एक बरेलवी मुफ्ती ने दर्जनों किताबों से दलील दी है कि वो वाकया हसन है। आपकी इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? बिल्कुल जी, जाली वाकया है और इसके ऊपर मुहद्दिसीन की जिरा मौजूद है इन रवायतों के ऊपर। हम सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो ये अमल किया, क्या ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक दुरुस्त है कि नहीं। हम अक्लन साबित करेंगे कि हम उन मुहद्दिसीन के साथ हैं जो इन रवायतों को ज़ईफ़ समझते हैं। झूठा आदमी किसी मुहद्दिस ने इनको ज़ईफ़ करार नहीं दिया, बल्कि ये किताब फ़ज़ाइल सहाबा जिसकी ये तारीफ़ कर रहा है और शेख अरब शेख के बारे में कह रहा है कि उन्होंने इसकी ताकीम की है, उस अरब शेख ने भी ये कहा है कि ये हदीस जो है ये सही है। 1481 और 1482 फ़ज़ाइल सहाबा जो किताब है उसमें खुद ये दिखा रहा है। ये ज़रा आप पहले देख लें। ये पहली दफ़ा ये किताब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जेहलम शहर से छपी है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह की किताब फ़ज़ाइल सहाबा, दुनिया में फ़ज़ाइल सहाबा के ऊपर सबसे बड़ी ये किताब है। 1903 अहादीस हैं इंटरनेशनल नंबरी के मुताबिक, और ये तहकीम एक अरब स्कॉलर की तहकीम के साथ छपी हुई है, शेख वसीउल्लाह बिन मोहम्मद अब्बास की तहकीम के साथ। 1481 और 1482 आप निकाल लें। अरब मुहक्किक वसीउल्लाह बिन मोहम्मद अब्बास ने इन दोनों रिवायात के नीचे इसकी तहकीक में लिखा कि तहकीक इसनादुहु सहीउन, इसकी सनद सही है। शेख अवामा अरब मुहक्किक हैं, उन्होंने अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की तहकीम और तहकीक में इस हदीस को सही करा दिया। शेख इमरान शरो उसूल इत्क़ाद अहले सुन्ना की तहकीम में इस हदीस को सही करा देते हैं। कितना कमीना आदमी है, इन किताबों की तौहीन करने लग गया कि इनकी हैसियत नहीं है कि उन्होंने अपनी जो है वो जगह नहीं बनाई सियासता में। ये जो दर्जन किताबें इनमें से एक किताब भी नहीं है जो कुतुब सित्ता में आती हो। इसी वजह से ये किताबें बाहर बैठी हुई है ना। अगर इनकी ये हैसियत होती तो मेन किताबों में इन्होंने अपनी जगह बनाई हुई होती, इसलिए वो बाहर बैठी हैं। और अपनी बारी है तो जनाब अली फ़ज़ाइल सहाबा भी देख रहे हैं, फ़ज़ाइल सहाबा पढ़ें। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जनाब जिसका तो कोई 25% या 20% जो है ना वो अहादीस इमाम मुस्लिम ने ली हैं, बड़ी फजीलत बयान करेगा। अब क्या है जनाब, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा से एक झूठी रिवायत पेश करता है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ख़वारिज के पीछे नमाज़ पढ़ते थे। झूठी ज़ईफ़ रिवायत पेश करता है। जनाब देखिए मेरा ये मौक़िफ़ ये है, जबकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला ने ख़वारिज के गर्दनें उड़ाई, उनको मारा, तो मौला अली पर भी झूठ बांधता है कि जनाब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला ने ख़वारिज के जनाजे पढ़ाए। हमने बार बार कहा कि दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है, झूठ पे झूठ बोली जा रहा है। तो यहाँ किताबों की तौहीन की कि इसलिए बाहर बैठी हुई हैं। तो 12 किताबों के हवाले जब इसको मिले ना ये चकरा गया। तो ये कमीना आदमी है, अपने आप को झूठा करता है, खुदा की कसमें खाता है और फिर झूठ बोलता है। अल्लाह ने मुझे इसे कर दिया है, नऊज़ बिल्लाह, ये नहीं अब अल्लाह की कुदरत में फ़ॉल्ट आ गया। पहले क्या था, अल्लाह ने मुझे ऐसे कर दिया है, मुझे गुस्सा नहीं आता, रत्ती बराबर गुस्सा नहीं आता, और जो मुझे छेड़ता है मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। ये इसकी तज़ाद बयानी है। ये कमीना आदमी है, झूठा आदमी है, झूठों पर अल्लाह की लानत है। तो ऐसे झूठों से दूर रहना बेहतर होता है, ऐसे कमीनों से बचना है। हमने आप दोस्तों के लिए कुछ कोर्सेज जो है वो लॉन्च किए हैं ताकि आप उन कोर्सेज में शामिल हों, इल्म दीन सीखें और ऐसे फितनों और कमीनों से बचें। पहला हमारा जो कोर्स है वो है सही मुस्लिम का दौरा। 10 माह का दौरानिया का दौरा है। हफ्ते में सिर्फ 2 क्लासें होंगी, हफ्ता और इतवार। इशा के बाद 1 घंटे की क्लास है, 1.5 घंटे की क्लास है। आप उसमें अहादीस को पढ़ेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे, आपकी इल्म में इजाफा होगा। हफ्ते में 2 दिन तो आपको निकालने चाहिए। ये दौरा सही मुस्लिम जो बेहतरीन किताब है उसका हम दौरा करा रहे हैं 12 अप्रैल से। तो उसमें आप शामिल हों, हम ग्रुप बनाएंगे, उसमें आपको शामिल करेंगे। तो ये बेहतरीन आपके पास मौका है इल्म दीन सीखने का। और नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं नद्दरल आबदन समय मकालती,
جس نے میری بات کو سنا، یاد رکھا، دل میں جگہ دی، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے. یہ آپ علیہ السلام کی دعا ہے. تو صحیح مسلم کے دورے میں شامل. دوسرا ہمارا دورہ ہے 3 سال کا عالم کورس. صرف نحو اس میں پڑھائی جائے گی. 4 کلاسیں تو اس میں صرف نحو عربی کی ہوں گی، اور 2 کلاسیں یہی ہم اس کو دورے میں ان کو بھی ہم شامل کر دیں گے، تو انہیں ڈبل فائدہ ہو جائے گا. تو اگر کسی کے پاس ٹائم ہے تو وہ 3 سال عالم کورس وہ بھی کر لے، بہت اچھی بات ہے. اور اگر آپ کے پاس ٹائم کی شارٹیج ہے، کم سے کم ہفتہ اور اتوار والا جو کورس ہے دورہ صحیح مسلم، اس میں آپ ضرور شامل ہوں. انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے ملے گا. قرآن، حدیث اور فقہی مسائل، آپ علیہ السلام کی سیرت، صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت، جنگوں میں جو حالات ہوئے، تو صحیح مسلم انشاءاللہ اس کو ہم آپ کو سارا پڑھائیں گے، صحیح مسلم، اور اس کا ہم دورہ آپ کو کرائیں گے. انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا.